Hello everyone, I hope you are doing well. In this video, we see our next part, that is a unit of memories, and again we see some concept related to hardware and software. What are the categories of the softwares? What are we? How can we classified into two types of utilities? That is application software and system software. Again, we see computer operating systems for personal computer. What are the operating systems? We give some information. I give some information regarding that. Okay, so let's start with units of memory. Computer storage and memory is often measured in megabytes and gigabytes. Okay, so जो भी डेटा रहेगा, जो भी कंप्यूटर का डेटा रहता है वो डिजिटली स्टोर होता है हमारे हार्ड ड्राइव में या फिर कहीं भी जो स्टोरेज यूनिट है वहाँ पे. बट जो भी डेटा है वो हमारा बाइनरी फॉर्म में रहता है, डेट इज द जीरो एंड वन ओनली. ओके, सो जब भी कोई डेटा रहेगा वो इन दो बिट्स में ही रहेगा, डेट जीरो एंड वन. ओके, बिकॉज दैट इज ओनली अंडरस्टैंडेबल टू कंप्यूटर. उसमें भी जीरो एंड वन एक अलग अलग वर्क परफॉर्म करते हैं. एक्चुअली कोई भी मशीन होती है, कोई भी अगर मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन है, वो किस पे चलती है? राइट, इलेक्ट्रिसिटी. what are their signals passes by their conductors and transistors, whatever be that. Okay, so उसमें सिग्नल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक तो सिग्नल ऑन होता है या फिर ऑफ होता है, दो ही टाइप होते हैं. सो बट इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमन what is the on and what is the off. So there is a two signals which denote for their various function. That is zero is work as a off and one is work as a on. Okay, so that is the data. Agar regarding data, so what are their various memory we see, units of memory we see. अब ये जो जीरो एंड वन है इसको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट्स, राइट? बिकॉज बाइनरी मीन्स टू, ओनली टू, that is two digits only. So 0 and 1 is only two digits. Okay, so it's called binary digit. So bit, it is a binary digit that holds only one of two values, that is 0 and 1. Okay, that is the bit. What is the nibble? Nibble is the group of four bits collecting the ये जो है ये 1011, what is that? Nibble. Okay, and bytes, a binary group of 8 bits is called byte. A byte is the smallest unit which can represent a data items or character. अब ये जो है group of 8 bits is called as the byte. Okay, so क्या होता है बीट? यानी क्या होता है? सिंगल यूनिट होता है, होल्ड करता है जीरो या वन को, राइट? दैट इज द बीट. निबल इज द ग्रुप ऑफ फोर बीट्स एंड बाइट्स इज व्हाट? ग्रुप ऑफ 8 bits. Okay, so that is the memory unit. So here is a different memory units. One bit is a single binary digit, that is 0 1 or 0. One byte is equal to 8 bit. 1 kilobytes means 1024 bytes. 1 megabytes is equal to 1024 kilobytes. 1 gigabytes is equal to 1024 megabytes, and so on. 1 terabyte, 1 petabyte, 1 exabyte. So all this is the different type of memory. Okay, one minute. Okay. सो ये हमारी मेमोरी यूनिट्स है. आप एक बार उसे देख लीजिए, उसे पढ़ लीजिए प्रॉपरली, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिनेरियो. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अब देखिए, कोई भी मशीन रहेगी वो दो चीज़ों पे चलती है. कोई भी डिजिटल मशीन दो चीज़ों पे चलती है, दैट इज़ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, राइट? So first we see what is the hardware. The computer hardware comprises of the physical components that a computer system required to function. In a simple words, hardware are the part of which we can see, we can touch them, feel them. It encompasses everything with a circuit board that operates within a personal computer or laptop, including the motherboard, graphics card, CPU, ventilation fans, webcam, पावर सप्लाई एंड सो ऑन. हार्डवेयर यानी क्या होता है? जिसकी मदद से हम वर्किंग कर सकते हैं.
अभी देखिए, सिंपल मैं एक ह्यूमन काइंड का ही एक एग्जांपल लेता हूँ। हम जो मूवमेंट कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? कोई जैसे कि हाथों से मुझे कोई चीज़ उठानी है तो मैं उसके लिए कौन सा यूज़ कर रहा हूँ? हाथों का यूज़ कर रहा हूँ टू पिक दैट थिंग। ओके, सो वो मेरे लिए क्या हो गया? दैट इज द नथिंग बट हार्डवेयर, बिकॉज I can see them, feel them, touch them. Okay, so that is the hardware. But the thing which is encourage me to do that, okay, वो जो करने के लिए, अगर मुझे कोई चीज़ उठानी है तो वो उठाने के लिए जो मुझे चीज़ मुझे इंसिस्ट कर रही है या फिर मुझे करने के लिए मदद कर रही है, व्हाट दैट इज व्हाट? सॉफ्टवेयर। ओके, सो सिंपल थिंग है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर। यही चीज़ें कंप्यूटर के साथ होती है। A set of instruction given to the computer is known as the program. Program or the set of programs is called a software. अब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं which give to computer to perform a particular task. Okay, this help us to interact with the computer in order to perform a particular task. Software is a generic term used for describing computer programs. अब सॉफ्टवेयर क्या है? एक जेनेरिक टर्म है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए, राइट? सो अब समझ, ये हार्डवेयर, टू रन द हार्डवेयर इज डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर, बस यही है, राइट? एंड वाइस वर्सा। ओके, अब इसमें वेरियस टाइप ऑफ कैटेगरी, टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज है। व्हाट आर दैट? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स क्या होता है? इट रेफर्स टू सॉफ्टवेयर विच रिलीजेस कोड इन पब्लिक डोमेन for anyone to use. The source code can be copied, modified, and distributed by other users and organizations. As the software is open to public, the result is it is that it is constantly updated, improves, and expand as more people can work on its improvement. Many states are following FOSS policy, that is a free open source software policy, and it enables them to save some millions of rupees each year in licensing cost. अब क्या होता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हम, आपने कभी देखा होगा कि कोई कोई वेबसाइट, अभी ये जो वीडियो रिकॉर्डर मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच आई यूज्ड। ओके, सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की खासियत ये होती है कि उसे पब्लिक डोमेन में फ्रीली अवेलेबल रहता है। हम उसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें उसके कोड में चेंजेस कर सकते हैं। अगर मुझे उसके कम्युनिटी में ज्वाइन होके उसके कोड को अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, सो दैट्स टाइम आई विल अलाउ टू modify their code. Okay, so that is the open source software. Okay, and second one is the closed source software. It is the और इसमें देखिए ये freely available रहता है, most of time ये freely available रहता है, and we can use it easily, and it is available in our online, in our any online website or cloud to use this type of software. Okay, closed source software, what is this? It is the opposite to the open source software. It and means that the software is used by the proprietary and has closely guarded by code. Only the original author of the software can access, copy, alter that software. In case of closed source software, user have to purchase the software before using it. क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इसके रिवर्स होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रिवर्स होता है। कैसे? कि अगर कोई किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, सो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर सिर्फ जो जिसने बनाया सिर्फ वही उसे मॉडिफाई कर सकता है, उसमें कोड में चेंजेस कर सकता है या फिर उसको यूज़ करने की परमिशन दे सकता है, राइट? सो जनरली इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उसके लिए हमें परचेस करना पड़ता है। So it is not freely available, it is the only for lives, it have some proper licensing. Okay, so that is the closed source software. Our next topic is
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन इट्स यूटिलिटी। अब जो भी सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो चीज़ों में और डिफाइन रहता है। वो तो टाइप हो गए, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है दो टाइप में होते हैं। एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है एंड सेकंड वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिजाइन फॉर एंड यूजर्स। Application software also called end user program, including program like database program, word processor, web browser, presentation software, spreadsheets। अभी जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, जो जो यूजर के लिए होता है, प्रॉपरली जो यूजर के लिए ही होता है, दैट इज द नथिंग बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि देखिए, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, व्हाट इज ऑल दीज थिंग्स आर application software, okay, because it is used by the user. And what is the system software? System software is a set of instruction required for computer to work. For example, Linux operating system is a programs that allow different applications and various component of hardware such as monitor, printer, mouse, keyboard to communicate with each other. आपने कभी ये सुना होगा कि आपके पास अगर पर्सनल लैपटॉप होगा या फिर नहीं भी होगा तो भी बता देता हूँ क्या है। अगर कोई हार्डवेयर है, मान लो अगर कोई हार्डवेयर है, अगर मुझे कोई हार्डवेयर कनेक्ट करना है, जैसे कि मुझे मान लो कि कंप्यूटर से मुझे प्रिंटर को कनेक्ट करना है, सो दैट इज आउटपुट डिवाइस फॉर मी, ओके। प्रिंटर इज नथिंग बट आउटपुट डिवाइस। बट उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए मुझे उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने पड़ेंगे, राइट। अगर मैं यहाँ पे सिंपल कमांड देता हूँ प्रिंट की, सो it passes data to that output device, that is nothing but printer, and it produce that proper output. So उसको चलाने के लिए मुझे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो उसको हैंडल कर पाए, राइट। I don't want to use I don't want to do manually that thing. So उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा। सो दैट इज़ द नथिंग, उसको चलाने के लिए जो जो सॉफ्टवेयर हमें हेल्प करता है, दैट इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। दैट इज़ द एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें अवेलेबल होते हैं, अलग अलग हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, राइट। सो दैट इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम के लिए सिंपल थिंग है, जो चीज़, जो एप्लीकेशन या फिर जो सॉफ्टवेयर एंड यूज़र हमारे लिए बना है, दैट इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड जो हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हैंडल करने के लिए बना है, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिंपल थिंग है, ठीक है। अब देखिए, जो भी हमारा, एक मिनट मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। सो देखिए, अब यूज़र को कम्युनिकेट करना है। एक मिनट। अब यूज़र को कम्युनिकेट करना है हार्डवेयर से, राइट। अगर यूज़र को कम्युनिकेट करना है हार्डवेयर से, सो इट रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी देखिए यूज़र को तो कुछ मशीन के बारे में तो पता नहीं होगा, वो कब तक अपना ऑन ऑफ का सिग्नल देते रहेगा, राइट। उसको पहले कन्वर्ट करना वो बहुत हेक्टिक वर्क होगा, राइट। सो इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल, राइट, कि कंप्यूटर से यूज़र का इंटरेक्ट करना, राइट।
सो उसके लिए हमने एक चीज़ बनाया है, दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑपरेट हार्डवेयर एंड इट गिव इंटरफेस टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर टू द यूज़र। ओके, सो यूज़र को एक इंटरफेस देता है ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे कि आपने विंडोज़ देखा होगा या फिर एम एस डॉस देखा होगा, व्हाट इज दैट, दैट इज द नथिंग बट ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑपरेट द हार्डवेयर। सो यूज़र इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से और ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से। अब क्या है कि यूज़र का जो भी डेटा है, अगर यूज़र ने कोई कमांड दी है मशीन को कोई वर्क परफॉर्म करने के लिए, तो सबसे पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा, दैट इज विच इज अंडरस्टैंडेबल टू यूज़र एंड इट गिव्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस फर्दर डेटा को जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उसको वो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके हार्डवेयर को डिलीवर करेगा एंड डिलीवर हार्डवेयर डू देयर ऑपरेशन। उसका जो भी आउटपुट जनरेट करना है वो आउटपुट जनरेट करेगा, फिर से वो मशीन लैंग्वेज में ही मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करेगा डेटा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट दैट डेटा इनटू द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म एंड इट रिटर्न टू यूज़र। ठीक है, सो इस तरह से ये ट्रांजिशन होता है, राइट। सो दिस इज द मेन रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें हमारे अलग अलग टाइप के कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, राइट। So first is the DOS. DOS. DOS is the disk operating system. Was the dominant operating system for microcomputer in early 80s. 80s में सबसे पहले क्या था, तो सबसे पहले एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आया था विच ऑपरेट्स द सिस्टम एंड अर्ली 90s फॉर वर्किंग विद डॉस यूजर नीड्स टू नो हाउ टू इनपुट द कमांड्स यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट विंडो। क्या रहती थी, सिंपल कुछ नहीं, अभी दिखाई देता हूँ आपको डॉस कैसे रहता था। एक मिनट, सी, बस ये ही रहता था डॉस। ओके, अगर मैं यहाँ पे अगर मुझे सिंपली अगर मुझे कोई डायरेक्टरीज देखनी है तो सिंपल एक कमांड टाइप करूँगा, जैसे कि यहाँ पे कमांड दिया है एंड क्लिक इट, आई सी ऑल द डायरेक्टरीज विच इज़ प्रेजेंट इन द माई कंप्यूटर। ओके, सो इसी तरह से मुझे जैसे मुझे कोई कॉपी करना था, अगर मुझे कोई डिलीट फाइल को डिलीट करना है, क्रिएट करना है, रीनेम करना है, तो उसके लिए मुझे अलग अलग कमांड यूज़ करने पड़ते थे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, राइट। सो दैट इज़ नथिंग बट द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका इंटरफेस सिंपली कुछ नहीं, ब्लैक रहता था, उसमें कोई ग्राफिक्स नहीं, कुछ नहीं, सिंपली एक ब्लैक कलर विंडो रहती थी जिसमें हमें कमांड थ्रू उसे ऑपरेट करना पड़ता था। सो दैट इज़ द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, विंडोज इज द सीरीज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद क्या है, विंडोज। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 1985 and 1987 respectively, where primitive Windows is the mostly common operating system. So ये जो थी ये ग्राफिकल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थी which helps to user to interact with the hardware. So ये मोस्टली पॉपुलर हो गई थी उस टाइम में 1985-87 में। सो मेनी ऑफ यूजर्स यूज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, देन मैक ओएस। अब मैक ओएस सिंपली इसी पे बेस रहता था बट इसमें थोड़े से चेंजेस थे। सो इट इज इन्वेंट बाय एप्पल कॉर्पोरेशन। एप्पल कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कॉल्ड मैक ओएस। ओके, Chrome operating system. Chrome is the open source operating system created by Google to create a better computing experience for people who spends more of their time on a web page. वेब पेज के लिए, वेब पेज पे हमें हमें अगर कोई भी अगर ऑनलाइन कुछ भी वर्क करना है उसके लिए क्रोम OS का यूज़ किया जाता था, राइट। अभी भी किया जाता है क्रोम, राइट। यूनिक्स, सबसे पहले जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, दैट टाइम फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज इन्वेंटेड दैट इज द यूनिक्स।
यूनिक्स इज द बेस ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, यूनिक्स जो है वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेस है, राइट। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आई है वो यूनिक्स से ही बन के आई है, राइट। देख लेते हैं यूनिक्स के बारे में। यूनिक्स वाज ट्रेडमार्क्ड इन 1969 by a group of AT&T Bell employees and at Bell Laboratories, Bell Lab at as a multitasking multi-user computer operating system। ये क्या थी? मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम थी, सबसे पहले इन्वेंट होने वाली, राइट। लिनक्स, लिनक्स इज AWN ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब मैंने कहा क्या क्या था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के टाइम में, कि जो भी इसमें चीज़ें हैं ये फ्रीली अवेलेबल रहती है, एंड इट गिव एक्सेस टू एनी वन टू मॉडिफाई, टू अल्टर दैट operating system। So okay, so Linux is AWN open source portable multi-user uh, multi-programming operating system। It is very similar to other operating systems such as Windows and a source code is available to the public। अभी ये जो था, ये जो Windows है, ये closed operating system है, right। And this one is the open source operating system। Okay, is a closed source operating system, Windows, Mac OS, all these things, all these are the, we have to pay some for licensing, to take licensing of that operating system, but Linux is the open source, it is freely available to all users, and it is the multi-user and multi-programming operating system। Okay, simple। अब हमारे मोबाइल फोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। There are many different operating systems for mobile phones and devices. These Android, Asha, BlackBerry, iOS, Windows phones, etc. Okay. So Android, what is Android? Android is a free and open source. It is also open source operating system which provided by Google. ये अभी अभी आया है, right? It is the most popular OS amongst all the operating system। ये शायद 2011 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी, right? आशा, आशा यूज बाय नोकिया फोन्स। ये पहले आता था, ज़्यादा चला नहीं, लेकिन ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। दिस इज द क्लोज्ड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्लैकबेरी, दिस इज द क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स डिवाइस। वो ब्लैकबेरी के फोन्स आते थे, राइट, उसमें उसका ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। iOS is a Apple closed source operating system for Apple iPhones, iPod Touch, iPad and second generation Apple TVs। अभी टीवीज में भी ज़्यादातर iOS यूज़ किया जाता है, राइट। और फ़ोन के बारे में आपको तो पता ही होगा, राइट। विंडोज़ फोन, बीच में क्या हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को टेक ओवर किया था। तो उस टाइम में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम लाई थी विंडोज़ फ़ोन के लिए। जो भी फ़ोन थे उसमें नोकिया के जो भी फ़ोन थे उसमें उन्होंने, और उनके भी कुछ प्रोडक्ट्स थे माइक्रोसॉफ्ट के। सो देयर दे यूज़ देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ द विंडोज़। Windows Phone is developed by Microsoft and it is closed source operating system for mobile phones। Okay, so that is nothing, the operating system for mobile phones। सिर्फ एक नॉलेज करके बस है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। So student, today we stop here। In next video we see about introduction of GNU Linux। uh, okay, what is the graphical users interface, command line interface, and see uh, some software relating codes of command line interface। Okay, so stay safe and goodbye।